Welcome back, children, to your English class. Today we will have the third part of the chapter 10, Pepper the Capuchin Monkey. Yes, so in the last video we were talking about the girl's fantasy pet that was a monkey. And the monkey was quite unique. बहुत ही unique monkey था. So we read about a girl when she was asked to come before the class and talk about or speak about her pet. Then she suddenly thought of a monkey and started telling about that female monkey and said lots of things that made all the classmates, even teacher, so curious, right? So the moment she was done with the explanation and all, the bell rung, bell बज जाती है and everybody surrounded that girl with lots of questions, right? So let's see how does she answer all the questions of her classmates. Here we were reading this line: after the bell rang, I was surrounded by girls and inundated by their intrigued questions. Now we'll have the another paragraph. So what happens? Let's see. Why didn't you ever tell us before? Now all the girls come to her and ask her that before, why didn't you tell us? इसके पहले तुमने हमें क्यों नहीं बताया? Then what does she reply? She says that, well, I didn't want to show off, you know. अब वो इस तरीके से बोलती है कि that she is not showy, she doesn't want to show off anything, that's why she hasn't talked about her unique monkey to them. बताती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करती, इसलिए उसने कभी बताया नहीं. Then again the next question comes: what does she eat? Where does she sleep? How old she is? Now back to back questions she is getting right now from her own classmates. उसके जो सहपाठी हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उससे बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं. Then what happens? And then the inevitable: oh please, when we can see her. Now finally जो बहुत important, inevitable का मतलब है the most important, जो सबसे important question था, that when can they see that monkey. वो जो classmates हैं उनसे कहते हैं, उस लड़की से कहते हैं कि when we can come your home and see your monkey, हम उससे कब मिल सकते हैं. Don't ask me how I. अब now that girl is confused what to do. अब वो because that was just her imagination, उसकी तो सोच थी, कल्पना थी वो. अब now she was confused and now she is saying, she becomes confused and says that internally, अब मन ही मन में वो कह रही है that don't ask me how. अब वो हम लोगों से बल्कि कह रही है कि मुझसे पूछो नहीं कि मैंने कैसे, how did I manage the situation, मैंने कैसे उस situation को manage किया. तो कहती don't ask me how wriggled out of that one. It means don't ask me that how did I manage that situation, how did I tackle that confusing situation. Wriggled out का मतलब होता है to manage something or to escape from any situation, किसी situation से बचना. अब वो कहती है but I did, but somehow I managed, I could manage all the situation for the time being, at least कम से कम मैं situation को manage कर पाई उस पल के लिए. In the meanwhile, the fantasy attained greater heights within me. Now that girl says that as she saw everybody is getting excited and getting curious about her monkey. So now she here what is she telling? She is saying that I am also getting too much excited about my imagination. मैंने इतना अच्छा लोगों को बताया है कि लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और वो मेरे से बात करना चाह रहे हैं, तो वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रही है और उसकी जो फैंटेसी यानी जो उसकी कल्पना है और ज़्यादा क्रिएटिव हो रही है. शी इज़
बीइंग मोर क्रिएटिव देन दी अर्लियर, वो पहले से ज़्यादा और क्रिएटिव हो रही है और अंदर ही अंदर फिर कुछ और सिचुएशन सोच लेती है। अटेन का मतलब होता है टू गेट समथिंग, किसी चीज़ का मिलना। फैंटेसी का मतलब कल्पना। मीनवाइल का मतलब होता है उसी बीच में। I could see little Pepper actually see her. And when one day a rat chewed a corner of my Sanskrit exercise book, Pat came the reply, I'm really sorry, Mrs. Rana. You see, my cappuccino monkey is teething and she is chewing up everything in sight. I'll get a new book and copy out all the exercise again. अब वो बच्ची जो है वो इतना ज़्यादा क्रिएटिव हो रही है, इतनी ज़्यादा उसकी इमेजिनेशन ग्रो कर रही है, बढ़ रही है कि उसने उस जो फेक और इमेजिनरी कैरेक्टर था मंकी का, उसने उसको देखना भी शुरू कर दिया है। और वो क्या कहती है, आई कुड सी लिटिल पेपर एक्चुअली सी हर। वो कहती है कि नाउ इट इज़ दैट कैपुचिनो मंकी इज़ इन माई रियलिटी, वो मेरे रियलिटी में आ चुका है और मैं उसको देख पा रही हूँ। वो कहते हैं मुझे दिख भी रहा है। और वो कहती है कि वन डे व्हाट हैपन्स दैट अ रैट च्यूड अ कॉर्नर ऑफ हर संस्कृत एक्सरसाइज बुक। वो कहती है कि वन डे वन रैट च्यूड हर संस्कृत नोटबुक, हर संस्कृत एक्सरसाइज बुक। उस चूहे ने उसकी संस्कृत की बुक को चबा लिया और कुतर दिया। च्यूब का मतलब कुतर दिया, कॉर्नर। सो अब पैट केम द रिप्लाई। पैट केम मतलब सडनली अ क्विक रिप्लाई केम, आई एम रियली सॉरी मिसेस रैना। अब उसके जो सोच थी उस पर कैपुचिनो मंकी की जो कल्पना थी इतना हावी थी कि वो जो चूहा था वो चूहा भी उसको कैपुचिनो मंकी ही लग रहा था। और वो जैसे अपनी संस्कृत की बुक देखती है, एज शी सीज हर संस्कृत एक्सरसाइज बुक, शी सेज आई एम रियली सॉरी मिसेस रैना। वो रैना मैम को सॉरी बोलती है। और जबकि वो जानती है कि इसे चूहे ने खाया है, लेकिन वो क्या रैना मैम से बोलती है कि यू सी माई कैपुचिनो मंकी इज टीदिंग एंड शी इज़ चूइंग अप एवरीथिंग इन साइट। वो कहती है एज आई हैड टोल्ड यू अबाउट माई कैपुचिनो मंकी, इट इज़ सो स्मॉल और वेरी यंग, सो नाउ डेज इट इज़ टीदिंग। टीदिंग का मतलब होता है दांत निकलना। एंड वी नो कि जब बच्चों के दांत निकलते हैं देन दे वांट टू च्यू समथिंग और दी अदर एवरी टाइम। तो वो कुछ ना कुछ चबाने का उनका दांत में क्योंकि सेंसेशन होता है, तो वो उनका कुछ ना कुछ चबाने का मन करता है, चाहे वो जानवर का बच्चा हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग का बच्चा हो। तो कहती है नाउ शी हैज़ स्टार्टेड telling her teacher also that you know teacher that my cappuccino monkey is teething, उसके दांत निकल रहे हैं। and she feels like every time chewing something or the other, कुछ ना कुछ उसको चबाने का मन करता है। but you don't worry, I'll get a new exercise book and complete it। वो कहती है मैं फिर से एक नया एक्सरसाइज बुक खरीद लूँगी और उसको कंप्लीट कर दूँगी। Now the next paragraph comes। अब वो क्या कहती है, नो नो मिसेस रैना, ग्लासेस ग्लिंटेड, दैट वोंट बी नेसेसरी एट ऑल। अब वो अपने आप से ही फिर से अपने आप इमेजिनेशन में एक बात बोलती है कि नहीं नहीं मिसेस रैना, जो आप ग्लासेस हैं, जो चश्मा है वो चमक रहा है, वो ये बात सिर्फ अपने आप से बोल रही हो और कह रही है कि नहीं नहीं, अब चूहे से ही जो मंकी है, जो उसका काल्पनिक मंकी है, इमेजिनेशन वाला मंकी है उससे वो कह रही है कि नहीं नहीं, वो मिसेस रैना के चश्मे हैं जो चमक रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू च्यू इट। उससे कहती है अपने मंकी से, नहीं नहीं उसको मत काटो, बहुत ज़रूरी नहीं है। बट टेल मी what are you going to do about the monkey's teething? अब वो कहती बट जो मंकी के दांत निकल रहे हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। तो खुद ही वो रिप्लाई ढूंढती है और कहती है
वी गिव हर आइस क्यूब्स। वो कहती हैं कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो हम उसको आइस क्यूब्स देते हैं। बेबी च्यूवी टॉयज़ देते हैं, ठीक है। एंड यू नो द काइंड बेबीज़ यूज़, ठीक है। अब वो ये सारी बातें बताती है किसी से कि जब ये बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें खाता है या फिर कोई बच्चा ऐसी ऐसी चीज़ें चबाता है तो उसको हम बेबी टॉयज़ देते हैं, जिससे कि वो अपना जो दांतों में जो चीज़ें हो रही हैं उसके सेंसेशन या हल्का पेन हो रहा है तो वो चबाने से ख़त्म हो जाएगा। साइड में टॉयज़ बने हुए हैं जो बच्चों को चबाने के लिए दिए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस गर्ल। नाउ व्हाट शी says, I saw the end of the pepper approaching with the onset of August, my birthday month. Fond as I had become of my fantasy pet, I wasn't about to miss my birthday party for her. So, with a heavy heart, I killed her. I arrived in school with a long face and actual, genuine tears. Up now, she has the another problem. अब वो क्या सोच रही है, वो अब वो अपने दिमाग में उसने सोच लिया कि नाउ आई कैन सी द एंड ऑफ द पेपर। वो कहती है कि अब मुझे पेपर जो कैपुचिनो मंकी है उसका एंड, उसका खात्मा मुझे दिख रहा है। वाई? बिकॉज माई नो बर्थडे इज़ अबाउट टू कम इन अगस्त, इन द बिगिनिंग ऑफ द ऑनसेट मतलब है बिगिनिंग, in the beginning of the August it's my birthday and I will have to somewhere disappear this पेपर। वो कहते हैं मुझे अब इस जो पेपर कैपुचिनो मंकी मुझे उसको डिसअपेयर, उसको कहीं ना कहीं गायब करना पड़ेगा, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरा बर्थडे आ रहा है और मैं अपना बर्थडे स्पॉइल नहीं करूँगी इसकी वजह से। वो कहती है फोन एज आई हैड बिकम ऑफ माई फैंटेसी पेट। वो कहती है फुलिशली, फ़ोन का मतलब वैसे तो फ़ोन का मतलब लाइकिंग होता है या लाइकनेस होता है या फिर प्रिय नो, जो चीज़ हमें पसंद है। तो कहती बट फुलिशली क्या मैंने अपनी फैंटेसी को, अपने फैंटेसी पेट को मैंने फालतू में रिक्रिएट कर लिया। अब इसकी वजह से मुझे बार बार प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब वो क्या बोलती है, आई वॉजंट अबाउट टू मिस माई बर्थडे पार्टी फॉर हर। वो कहती है दैट आई कैन नॉट मिस माई बर्थडे पार्टी बिकॉज ऑफ दिस पेपर। सो विद अ हैवी हार्ट, अब वो कहती है, एक प्लानिंग करती है कि मैं इसको मैं स्कूल कल जाऊंगी, आई विल गो टू स्कूल टुमारो एंड देन आई विल टेल एवरी वन दैट आई हैव द पेपर कैपुचिनो मंकी इज किल्ड। वो मर चुका है और मैं उनके सामने बहुत जेन्युइन टीयर, यानी मैं उनके सामने बहुत रोऊंगी जिससे उनको लगेगा कि हाँ आई एम ट्रू, मैं सही हूँ। तो कहते हैं सो विद अ हैवी हार्ट, यानी बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही दुख भरे हार्ट के साथ मैं कहूँगी आई किल्ड हर, मैं कहूँगी मैंने उसे मार दिया। आई अराइव्ड इन स्कूल विद अ लॉन्ग फेस एंड एक्चुअल जेन्युइन टीयर। वो कहती है कि वो अपने स्कूल पहुँचती है और बोलती है दैट आई हैव किल्ड माई कैपुचिनो मंकी। अब वो क्यों कहती है मैंने उसको मार दिया, रीज़न वी विल कम टू नो लेटर। सो वो कहती है कि मैं अपने स्कूल, व्हेन शी रीचेज हर स्कूल शी टेल्स एवरीबडी, वो सबसे बताती है कि मैंने अपने मंकी को मार दिया और और फिर वो क्या करती, शी स्टार्ट्स बस्टिंग इनटू टीयर्स। वो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। जेन्युइन का मतलब होता है असली आंसू, फूट फूट कर रोने लगती है। व्हाट्स द मैटर, अब सब उससे कह रहे हैं क्या हुआ। आस्क्ड एवरीबडी, सब ने पूछा व्हाट इज़ द मैटर, वाई आर यू क्राइंग बिटरली, तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से रो क्यों रही हो। अब वो कहती है पेपर डाइट, वो कहती है कि पेपर मर चुका है, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाली लाइन में उसने कहा था आई किल्ड हर, ठीक है। वो क्योंकि ये बातें हमसे भी बता रही है, अपने दोस्तों से भी बता रही है, इट मीन्स रीडर, पढ़ने वाले को भी बता रही है, और साथ ही साथ उसके साथ जो घटना घट रही है उसके बारे में भी वो बता रही है। तो वो कहती है कि पेपर मर गया। Groups of distorted girls and even teachers surrounded me once more in hushed grieving tones. Oh, poor Pepper.
अब सब के सब ग्रुप ऑफ डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है वेरी वरीड एंड अपसेट. जो मेरी क्लासमेट्स थी, दे बिकम सो अपसेट, एंड माई टीचर्स ऑल्सो, एंड दे कम and started they come to me and start मेकिंग मी क्वाइट, मुझे चुप कराने लगी. हश का मतलब होता है चुप कराना. एंड व्हेन दे वर नो दे व्हेन दे आर मेकिंग मी क्वाइट, दे आर देमसेल्फ वेरी सैड. बहुत ही सैड टोन में मुझे, दुखी आवाज़ में मुझे चुप करा रहे थे. और उन्होंने कहा बेचारा पेपर. ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट today's class. I hope that you have understood it. Again, children, if you have any kind of confusion, you haven't understood any line, please keep asking your doubts in the class, or you can call me up. So saying this, I would say bye bye, take care.